Assalamu alaikum and welcome to IEEE Therapist Hyderabad webinar. Myself, Naeem Akbar Channad, Counselor of IEEE Therapist Hyderabad and Lecturer of Computer Science Therapist Hyderabad. So today our topic will be discuss about Introduction to Automation and that will be delivered by Mr. Muhammad Uzair, final year student. So before starting the webinar, I would like to call Ms. Lavida Asif to introduce IEEE Therapist Hyderabad. Ms. Lavida Asif, please you can proceed now. Yes, sir. Thank you for the opportunity. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Laviza Asif, Chairperson IEEE 2021 to 2022. Today I represent IEEE. Basically, IEEE stands for Institute of Electronic and Electrical Engineers. What is IEEE? IEEE, an association dedicated to advancing innovation and technological excellence for the benefit of humanity, is the world's largest technical professional society. It is designed to serve professionals involved in all aspects of the electrical, electronic, and computing fields and related areas of science and technology that underlie modern civilization. And if you are technologically challenged, then this is the platform where you can take the heat. Benefits for the members that IEEE gives is network with other technology professionals, establish a professional profile highlighting your accomplishments, join and participate in discussions on various technical interests, create a group to share and collaborate on projects, discover IEEE events and activities throughout the world. Benefits as a member. IEEE membership is about you being competitive and again taking personal responsibility for your career. IEEE's benefits include venues, resources to learn through different sources, opportunities, and tools for members to network, build valuable professional connections, and hone leadership skills. These are essential for managing your career. IEEE membership is more than what you receive. It's all about what you are giving back. When you belong to IEEE, you are also supporting a much larger mission. Benefits for the students: e-library, certificate programs, online learning network, resources center, change learning with a professional from all around the world. Why publishing with IEEE? IEEE is by far the most cited publisher in new patents. According to recent studies by 190 Analytics LLC, IEEE journals and conferences proceedings received more than 96,000 patent citations, more than 4 times the number of citations of any other publisher. IEEE produces 30% of the world's literature in the electrical and electronics engineering and computer science fields, publishing well over 100% reviewed journals. IEEE Resource Center benefits: access to valuable IEEE society and technical community content, access to content 24 hours a day, 7 days a week through an easy to use global portal, valuable peer-reviewed technical products available at little or no cost. Enhanced value of IEEE Society membership. Most technical content available at no cost for society members in their respective resource center. The goal of IEEE for 2020 to 2025 is to be a trusted source of educational services and resources to support lifelong learning, provide opportunities for career and professional development, enhance public comprehension of building and innovation, and seek after principles for their handy application. Inspire an overall crowd by building networks that advance specialized interests, advise public arrangements, and grow information to serve humankind. Drive worldwide advancement through expansive cooperation and the sharing of information.
Our mission: we will be key to the worldwide technical network and to technical experts all over the world, and to be generally perceived for the contributions of technology and of technical experts in improving worldwide conditions. We encourage technological development and greatness to assist mankind. Conveying on this plan, IEEE will encourage a shared domain that is open, comprehensive, and liberated from inclination, and will keep on supporting the quality, reach, and imperativeness of our association for people in the future. Thank you. Thank you, Lavisa. Now I would like to call Mr. Jose. Jose, please, you can proceed now. And Thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. Am I audible? yes, you are audible. Okay. सर स्क्रीन शेयर हो रही है? Hello, assalamu alaikum. I'm Ahmad Uzair, and today I will be giving a brief introduction to automation. First of all, a little introduction about me. I am a final year student in computer science program. I have worked as an automation testing engineer, and I have a certification from Google regarding automation using Python and interacting with operating system through Coursera. So what is automation? Basically, कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मिनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन के बाद आपको वो सर्विस या वो प्रोडक्ट मिले. ऑटोमेशन कोई नई चीज़ नहीं है जो कि अभी आप लोग कोई सुन रहे हो. ऑटोमेशन शुरू से है. लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री टू यूज ऑटोमेशन इज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. लाइक जापान में जब गाड़ियां बन रही हैं, देयर आर 80 to 85% रोबोटिक्स इन्वॉल्व इन दैट. वहाँ पर सारा प्रोसेस फ्रॉम बिल्डिंग द चैसी टू putting the final lug nut on the tire, it's all done without human interaction. There are many other things. आपके पास आप जो लॉगिन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक नई एप्लीकेशन में लॉगिन किया है और वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि साइन इन विद फेसबुक. तो आपने उस पर साइन इन विद फेसबुक कर तो दिया, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट वो एकदम से उस एप्लीकेशन के पास नहीं जाती. आपकी एप्लीकेशन पहले लिटरली एक रिक्वेस्ट जो आपकी होती है वो पहले फेसबुक के डेटा सेंटर्स के पास जाती है कि ये बंदा है, इसका ये यूज़र नेम है, ये ईमेल एड्रेस है, क्या इसका अकाउंट है. देन इट प्रोसेसेस इटसेल्फ. वो फेसबुक का अपना डेटाबेस प्रोसेस करता है कि भाई है या नहीं है. है तो उसका पासवर्ड ये है, उसने सही डाला है तो वो बताता है कि हाँ उसने सही डाला है. देन देयर इज एन ऑथेंटिकेशन टोकन जो कि उस एप्लीकेशन को फेसबुक की तरफ से मिलती है कि ये बंदा लेजिट है, इसका अकाउंट है, ही कैन एक्सेस योर ऐप नाउ. द इंटायर प्रोसेस इज डन इन लेस देन सेकेंड. क्योंकि अगर ऑब्वियसली अगर टाइम लेगा, नो वन विल बी यूजिंग इट. इन द प्रेजेंट टाइम आपको एफिशिएंट काम करना है, वरना पब्लिक आपकी एप्लीकेशन, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज कोई भी यूज नहीं करेगा. आपको जितना जल्दी और जितना अच्छा काम आप दोगे, पब्लिक आपको उतना पसंद करेगी. द फर्स्ट टू मार्केट नेवर लूजेस. फेसबुक के साथ काफी कंपेटिटर्स आए थे. जो फेसबुक 2004 में ही सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स काफी चली थी, बट फेसबुक वाज फर्स्ट टू द मार्केट. उन्होंने सबसे पहले अपना लॉन्च किया था. वो अभी तक बैठे हुए. तो ये जितना भी रिक्वेस्ट का प्रोसेस आपका हुआ था, इट is all automated.
आपके पास डेटाबेसेस में ट्रिगर्स बने हुए होते हैं कि आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी तो आप ये करोगे, आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी तो आप ये करोगे. सो इट्स ऑल एन ऑटोमेटेड प्रोसेस बिकॉज इफ देयर इज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, एक इंसान को आईडी पढ़ने में 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा, रिगार्डलेस के वो डेटाबेस में चेक करे, वो उस बात की बात है, उसको आकर पढ़ने में उसको 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा. तो इसके नीड क्या है ऑटोमेशन की? ऑटोमेशन के बेसिक नीड है, आपके पास कॉस्ट डिक्रीज करता है, लेबर कॉस्ट आपके पास जो होती है. आप फॉर एग्जांपल एक बंदा हर रिक्वेस्ट को चेक कर रहा है कि इसमें सही है या नहीं है, एंड यू आर पेइंग देम व्हाट, लाइक लेट्स से 10,000. वो सारी चीज आप एक लिटरली पुराना लैपटॉप या कंप्यूटर जो i3 का है, like automation is not that heavy on the processor if machine learning or anything else is not involved. It's basic programs, we will see after this presentation. तो आपके पास कॉस्ट जो है वो आपकी कम होती है. आपके पास जो ह्यूमन एरर्स होते हैं रीडिंग्स लेने में, कोई जैसे कि मैंने ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की जो एग्जांपल दी थी उसमें कोई नट वगैरह लूज टाइट XYZ कुछ भी हो सकता है उसके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसान भले 4 घंटे काम करे या 8 घंटे, एक रिपेटिटिव टास्क में वो थकेगा, वो उसको बेजारी होगी एक काम करने से. वो शुरू में वो अपना फुल 110% देगा, लेकिन एज द टाइम गोज ऑन वो अपनी एफर्ट्स कम करता जाएगा. दैट इंक्रीजेस द चांस ऑफ ह्यूमन एरर. अगर एक कंप्यूटराइज्ड चीज कर रही है, नॉट ओनली इट विल इंक्रीज द एरर लेस एनवायरनमेंट, लेकिन एक कंप्यूटर, एक मशीन इंसान से कई गुना ज्यादा टाइम बचा सकती है. अगर एक इंसान अपने हाथ से स्क्रू टाइट करने में उसको 10 सेकंड लग रहे हैं, तो 10 सेकंड में आपके पास जो ऑटोमेटेड स्क्रू टाइटनर्स होते हैं, they can do it like in less than a second. For example, in a Formula 1 racing, using a automatic wheel gun, जिससे आपके टायर के जो लग नट्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, they remove the 4 tires of a car in less than 2 seconds. 2 सेकंड से कम टाइम में 4 टायर गाड़ी के चेंज होते हैं. टाइम बच रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. आपके पास जितने पैसे आप एक महीने में किसी को दे रहे हो उसकी जो वैल्यू है वो कई ज्यादा आपके पास इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके पास एफिशिएंसी, आपके पास टाइम बच रहा है, आपके पास प्रोडक्टिविटी हो रही है. हर चीज के 2 पहलू होते हैं. अगर अच्छाई है तो उसके साथ बुराई भी आएगी. डिसएडवांटेजेस सबसे बड़ा है कि ये चीज आपकी जो जॉब मार्केट है उसमें जॉब्स खत्म करती है. आपके पास यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि लो लेवल काम जो होता है वो ही ऑटोमेट हो रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. लो लेवल जॉब्स मीनिंग एंट्री लेवल जॉब, जो आपके पास ग्रेजुएट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी से निकल रहे होते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस और एनीथिंग, तो उनके लिए मार्केट में जॉब्स ही नहीं है. वो क्या करें? वो एक कंप्यूटर उनकी जॉब्स खत्म करता जा रहा है. इट्स नॉट लाइक के अब ऑब्वियसली फॉर द फोरमोस्ट रीजन ऑफ अ बिजनेस, द मेन पॉइंट ऑफ अ बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट. उनको पैसे बचाने का रास्ता दिख रहा है, वो कोई केयर नहीं करते कि सामने वाले की रोजी जा रही है, कुछ भी जा रहा है, उनको अपने पैसे बचाने. सो आपके पास जॉब्स नहीं है. ऑटोमेशन के जो सेटअप होता है, जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, नॉट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इज कॉस्टली बट इट्स अ वन टाइम कॉस्ट. एंड फाइनली आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कंपेरेटिवली नॉर्मल यूजेज में आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है ड्यू टू द फैक्ट कि आपके पास कंप्यूटर्स अदर हार्डवेयर मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी पर ही चल रही होती हैं. तो हमें ऑटोमेशन यूज कब करनी चाहिए?
दिस इज रिगार्डिंग ओके ऑटोमेशन हमें यूज कब करनी चाहिए। आजकल कुछ लोगों का होता है कि यार आप हर चीज ऑटोमेट कर दो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको एक चीज ऑटोमेट करने में भी टाइम लगता है, एक चीज को अगर आपने ऑटोमेट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक टास्क है कि आपको रोजाना सुबह 9 बजे पानी की मोटर चलानी है कि पानी आता है, आपको रोजाना चलाना है। यू कैन क्रिएट ए स्क्रिप्ट और आप कोई माइक्रो कंट्रोलर आर्डुइनो उनो या कुछ भी आप मशीन के साथ लगा दें कि 9 बजे वो खुद मोटर पानी की चला देगा। लेकिन उसकी स्क्रिप्ट लिखने में आपको लेट से 10 दिन लग रहे हैं। तो आपको रोजाना सुबह 9 बजे उठ रहे हो, आपकी नींद खराब हो रही है, आप अपने रूम से उठते हो, जाते हो, मशीन का वो कैप खोलकर XYZ काम है। फॉर एग्जाम्पल हर दफा आपको 5 मिनट लग रहे हैं मोटर ऑन करने में। अब ऑब्वियसली मोटर ऑन किए तो बंद भी करनी है 5 मिनट, और पर डे आपके 10 मिनट इसमें ज़ाया हो रहे हैं। तो अगर आपके वो 10 मिनट एक्यूमुलेट होकर इन द नेक्स्ट 2 to 3 years 10 दिन तक हो जाते हैं, तो इट इज प्रॉफिटेबल फॉर यू टू ऑटोमेट दैट टास्क। अगर आपके पास उस स्क्रिप्ट को बनाने में आपको 2 महीने लग रहे हैं, लेकिन यार 2 महीने में जब तक आपको उसका रिटर्न मिलेगा वो 5 से 6 साल हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप ऑब्वियसली उस 5 से 6 साल तक आपको नहीं पता, आगे कोई और आपको घर चेंज करना पड़ जाए, आपको कोई और सिस्टम आपके पास लग जाए, तो आपकी जो मेहनत होगी वो आपकी जाया जाएगी। इट्स नॉट प्रॉफिटेबल। सो बेसिक इक्वेशन के टाइम टू ऑटोमेट, जो आपको कोई भी चीज ऑटोमेट करनी है, it should be less than the time that you perform the repetitive task combined in 2 to 3 years. Hope that makes sense. इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? इसका मेन यूजेस काइंड ऑफ वेब डेवलपमेंट में है, प्रोग्रामिंग के लिहाज से, क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्रिप्टोग्राफी में, ऑप्टिमाइजेशन में। लेट्स सी वेब डेवलपमेंट में अगर हम MVC मॉडल की बात करें, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो कि आपके पास जेंगो, गो, पाइथन, स्विफ्ट, ये सारे इवन C#, ये सारे आपके पास देते हैं। तो बिफोर डिप्लॉइंग दे ऑल रिक्वायर यू टू क्रिएट इंटरनल टेस्ट्स, जो कि आप सर्वर पर डिप्लॉय करने से पहले वो खुद अपना इंटरनली टेस्ट रन करते हैं, जो कि अगर सही होता है, एवरी टेस्ट इज क्लियर्ड, फिर वो जाकर सर्वर पर ऑनलाइन शो करते हैं, वरना वो ऑनलाइन शो नहीं करते। वो टेस्ट आप लिखते हो, आप उसमें ये बताते हो कि ये चीजें मैंने वेब पेजेस ये डाला है, डेटाबेस ये है, ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ है। टेस्टिंग वो खुद कर रहे हैं। टेस्टिंग अगर इंसान टेस्टिंग करने बैठेगा तो देयर आर लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट। तो हर दफा आप जब सर्वर रन करोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अगर इंसान एक टेस्ट कर रहा है। सो इट्स ऑल ऑटोमेटेड। बिल्ड टेस्टिंग आपके पास ओपन सोर्स में आता है जब कोई ओपन सोर्स एप्लीकेशन की कोई अपडेट आती है, आपके पास कोई भी अपडेट आती है, तो वो जितने भी टेस्ट हैं ओपन सोर्स में, आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेस्ट होते हैं। जो आपकी बिल्ड होती है कोई भी, फॉर एग्जांपल लिनक्स का कोई नया डिस्ट्रो आया है, उसमें आपके पास उसने बिल्ड किया है उसको, तो वो पूरी बिल्ड लाखों टेंस ऑफ मिलियंस टेस्ट के थ्रू गुजरेगी टू चेक फॉर एनी वनरेबिलिटी, फॉर एनी सिक्योरिटी होल्स, फॉर एवरीथिंग दैट इज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम के उसके टर्मिनल सही चल रहा है, उसमें ऑडियो सही आ रहा है, उसमें वीडियो सही है, उसका जो प्रोसेसर को हैंडल करने की जो क्यूरीज हैं, सिस्टम कॉल्स हैं, वो सही हैं, उसका जो ग्राफिक कार्ड को यूज करने की जो क्यूरीज हैं वो सही हैं। इट ऑल गोज थ्रू अ टेस्ट। अगेन ऑटोमेटेड होता है, इंसान करने बैठेगा तो जो हर साल डिस्ट्रो कोई आते हैं तो वो 5-6 साल लग जाए। फाइनली रिग्रेशन टेस्टिंग कैन बी डन ऑन
एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, बिल्डिंग, कोई भी बिल्ड आप बनाते हैं, इवन आपकी जो पाइपलाइंस होती हैं इन एनी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर आपके पास जो पाइपलाइंस होती है, इवन रिग्रेशन टेस्टिंग वहाँ पर भी काम आती है आपके पास। रिग्रेशन टेस्टिंग इज बेसिकली कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई जिसमें आपने सिर्फ लॉगिन की फंक्शनैलिटी दी है, ओके फाइन। अब आपने उसको अपडेट किया है कि उसमें आप अपना यूज़र नेम भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या पता कि अगर आप वो यूज़र नेम की फंक्शनैलिटी ढाल रहे हो तो उससे लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी, या आप उसमें जो फंक्शनैलिटी यूज़र नेम की अपडेट करने की डाल रहे हो उससे जो पिछले वाली फंक्शनैलिटीज़ है लॉगिन की वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी या नहीं होगी। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में आपके पास कोई भी अपडेट, कोई भी न्यू चीज़ आती है तो उसमें हमेशा आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट पर जो वो एप्लीकेशन, वेबसाइट, व्हाटएवर बना था उससे लेकर अप टू द लेटेस्ट अपडेट वो सारे टेस्ट रन होते हैं कि जो पुरानी फंक्शनैलिटीज हैं वो तो हर्ट नहीं हो रही। मूविंग ऑन, यहाँ पर 3 काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ऑटोमेशन यूज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली आपके पास रिसोर्स मॉनिटर होता है जो कि आपको मॉनिटर कर रहा होता है कि पर बंदा इसने कौन सा रिसोर्स यूज किया है, इसने कौन से रिसोर्स के लिए साइन अप किया था और इसने कौन सा रिसोर्स ये यूज कर रहा है। तो अगर इंसान करने बैठे तो आपके पास, आपको नहीं पता चलता कि विद इन सेकेंड्स आप मेगाबाइट्स ऑफ डेटा आप यूज कर लेते हो स्टोरेज में या इवन नेटवर्किंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन पॉइंट ही पे पर यूज है कि आपको जो चीज यूज करनी है उसके लिए आपको पैसे देने। आप फॉर एग्जांपल आपने सब्सक्रिप्शन की हुई है कि आप इन अ मंथ 1 टेराबाइट ऑफ स्टोरेज यूज करेंगे, तो द मोमेंट यू रीच 1024 गीगाबाइट्स, 1 टेराबाइट, उसके बाद वो आपको 1 MB या 1 KB भी यूज करने नहीं देगा। ऑल बिकॉज के रिसोर्स मॉनिटर पीछे से आपको बैक एंड पर ही बोलेगा कि भाई इस बंदे का कोटा पूरा हो चुका है, अब इसको नहीं देना है। दैट्स ऑल ऑटोमेटेड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। बैक एंड पर जो आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं दे ऑल डू दैट। क्रिप्टोग्राफी में ऑटोमेशन बेसिकली काम आती है जब आप माइनिंग कर रहे होते हैं। लेट्स हैव अ लिटिल बैकग्राउंड। क्रिप्टोग्राफी के माइनिंग के लिए यू नीड अ लॉट प्रोसेसिंग पावर। बेसिकली वो प्रोसेसर हैंडल नहीं कर पाता है तो आपको ग्राफिक कार्ड्स चाहिए होते हैं, जीपीयूज काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। आपके पास अभी जो लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड एनवीडिया की तरफ से आया है, इट्स RTX 3080। इट कंज्यूम्स अराउंड 500 वॉट्स ऑफ पावर। तो अगर आपके सर्वर फार्म में 500 RTX 3080 लगे हुए हैं तो लाइट बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है आपके पास। देयर आर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट्स जो कि आपकी माइनिंग को खुद ही टर्न ऑफ कर देती है। अगर फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन अपने क्रिप्टो फार्म में माइन कर रहे हैं तो अगर बिटकॉइन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे जाता है तो वो इट्स नॉट प्रॉफिटेबल टू, आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगाकर बिटकॉइन को माइन करो और वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हाँ वो 23,000, 24,000, 25,000 डॉलर्स का एक कॉइन है, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी कितनी खर्च कर रहे हो उस पर। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल और क्रिप्टो के पैसे इट्स नॉट प्रॉफिटेबल मच ऑफ द टाइम, स्पेशली ये आजकल जो क्रैशेस हो रहे हैं। सो देयर आर स्टैंडर्ड्स इन सॉफ्टवेयर जो कि ऑटोमेटिकली जो खुद चेक कर रहे होते हैं कि बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड अगर वो चला जाता है इट्स नॉट प्रॉफिटेबल एनीमोर, वो खुद आपका माइनिंग को बंद कर देता है। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपके पास फॉर एग्जांपल वी ऑल आर ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट ऑल आर स्टूडेंट्स हमें असाइनमेंट्स की फाइल, पिक्चर्स, XYZ बहुत चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती हैं। और आपके पास जो आपका डाउनलोड फोल्डर होता है विंडोज़ का, इट्स एक्सट्रीमली क्लटर्ड। आप महीने में नहीं तो 2 महीने में 3 महीने में उसको साफ ज़रूर करते हैं। इधर फ्रस्ट्रेट होकर आप पूरा डिलीट कर देते हैं, फिर आपको वापस कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप वापस से डाउनलोड कर रहे होते हैं, या अगर आपके पास टाइम होता है तो आप उसको भी कर लेते हैं। तो उसको भी ऑप्टिमाइज करने के काफ़ी तरीके हैं। सो वी आर गोइंग टू लुक एट दैट ऑल्सो। सो लेट्स गो टू द कोड एग्जाम्पल्स। बेसिकली इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ होता है, लाइट चली जाती है या कुछ, तो आपके पास वो चीज़ होती है। डायनासोर वाली एक गेम होती है आपके पास जो क्रोम में आ जाती है, जो कि रिसेंटली उन्होंने चेंज कर दी है। बट इफ यू वांट यू कैन काइंड ऑफ go to wait a second, you can go to this website and you can play this game. So before I show you the code, मुझे एक चीज ये नोटिस करवानी कि if we are playing this game, आप देखें the dinosaur is not moving in its मतलब sorry डायनासोर अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। जो चीजें हिल रही हैं, जो कैक्टस उसके पास आ रहे हैं और जो क्या कहते हैं जमीन चलने का इल्यूजन दे रही है, वो चीजें चल रही है। डायनासोर अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे हो रहा है। सो उसको ऑटोमेट करने का तरीका क्या होगा? बेसिकली आप स्क्रीनशॉट लेंगे पूरी स्क्रीन का, उसके बाद आप उस डायनासोर के बिल्कुल आगे, डायनासोर के 10 या 12 पिक्सल्स आगे आप डिटेक्ट करेंगे कि जो पिक्सल उसके सामने है वो वाइट है या फिर ब्लैक है, क्योंकि कैक्टस आपके पास जितने भी हैं वो सारे ब्लैक पिक्सल्स शो कर रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये जो पूरी गेम है इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, ये ग्रे स्केल में है। तो हमें पिक्चर जो हम स्क्रीनशॉट लेंगे उसको हमें पहले ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने इमेज का स्क्रीनशॉट लिया और उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया। इट्स ए बिल्ट इन मेथड इन पाइथन जो कि आपके पास इमेज ग्रैब में आ जाता है, और आपने उसको डेटा में काइंड ऑफ डेटा इज image.load, what it does is कि आपकी जो पूरी इमेज है उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो कोई भी पिक्चर है इट्स एरे, इसमें आपके पास पिक्सल्स की वैल्यू होती है। तो वो पूरी एक एरे में होता है, उसने आपको दिया, आपने यहाँ पर चेक किया कि जो डायनासोर के आगे वाला पिक्सल है वो आपके पास ब्लैक है या वाइट है। अगर वो ब्लैक है इट्स ग्रेटर देन 247, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट में ये इसमें नंबर्स में थोड़ी कंफ्यूजन है, तो आप ट्रू करते हो वरना फॉल्स करते हो। तो अगर आपने का कोलाइड ट्रू आ रहा है तो आप अप प्रेस करते हो, सो इट विल जस्ट जंप अप, और अगर इफ इट्स नॉट इट कीप्स ऑन गोइंग। और ये जो ड्रॉ शेप वाला फंक्शन है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, ये आप ढूंढने के लिए कि काइंड ऑफ कहां पर वो बेसिकली पिक्सल है। One of the final scripts that I want to share with you guys is basically this is my downloads folder. ये इतना I would not say कचरा but बहुत ज़्यादा cluttered है। यहाँ पर आपके पास असाइनमेंट फाइल्स हैं, इंस्टॉलर्स हैं, वेबिनार के सर्टिफिकेट्स हैं, पीपीटीज हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो व्हाट आई डिड वाज आई क्रिएटेड ए स्क्रिप्ट जो कि मेरे लिए सारा काम करेगा। सो दिस इज द स्क्रिप्ट, इट्स अराउंड 64 लाइन्स।
and I'm not going to do anything. It's here, and I'm just going to run the script and everything is done. यहाँ पर मेरे पास सारी कंप्रेस फाइल्स हैं जो कि zip rar फॉर्मेट में होती हैं. डॉक्यूमेंट्स सारी यहाँ पर है आपके पास, असाइनमेंट्स, प्रपोजल, SRS सारे यहाँ पर आ गए. एक्सेल में आपके पास जो CSV फाइल्स या फिर XLSX फाइल्स हैं वो हैं. If you notice one thing, if I can, यहाँ पर मेरे पास फोल्डर्स भी नहीं बने हुए थे. Everything was done by this script. So what is this script doing? सबसे पहले इसने होम का पाथ लेकर उसका डाउनलोड्स फोल्डर ढूंढा है और उस डाउनलोड फोल्डर में जो आपके पास जितनी भी डायरेक्टरीज हैं आपने उसको एक काइंड ऑफ एरे में रखा है, बिकॉज os.list returns an array of names of the files that are present in that particular directory or folder. आपने फोल्डर के नेम्स दिए कि मुझे ये फोल्डर्स बनाने हैं और ये वाला लूप आपका बेसिकली यहाँ पर चेक कर रहा है कि क्या ये फोल्डर पहले से ही मौजूद है या नहीं है. अगर os.path मतलब आपके पास जो ये वाला पाथ है, डाउनलोड्स वाला पाथ है, downloads./pex की एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. If it's true, pass on, there's nothing else to do. If it's false, create the folder. ठीक है जी. इसी तरीके से आपके पास ऑलमोस्ट 10 फोल्डर्स आपके पास क्रिएट हो जाते हैं. आप वापस से हर फोल्डर का नाम वी आर गोइंग टू यूज दिस फंक्शन लेटर ऑन. और यहाँ पर मूव फाइल्स बेसिकली SHUtil आपके पास एक पाइथन का पैकेज है जिसमें कमांड लाइन के जो प्रोग्राम्स होते हैं mkdir तो बेसिकली आपके पास OS में भी है ये रहा, बट SHUtil में आपके पास दूसरे जो मूव के कमांड्स हैं, कॉपी के कमांड हैं जो आप कमांड लाइन में यूज करते हैं, उसमें आपके पास वो चीजें आ जाती हैं. सबसे पहले हमने ये फोल्डर्स बनाए और उसी फोल्डर के नाम से हमने एम्प्टी एरेज को इनिशियलाइज किया है. हमने उसमें कुछ नहीं डाला है. यहाँ पर काइंड ऑफ ऑल फाइल जो हमने ली थी, जितनी भी डाउनलोड्स में जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, हमने बोला कि अगर उसका पहली फाइल उठाओ, अगर वो AND-exe या MSI से हो रही है सो इट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल. वो एक इंस्टॉलर है या वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो आप उसको exe में अपेंड कर दो. जो भी पहला कुछ भी होगा वो यहाँ पर आपके पास आकर अपडेट हो जाएगा. अगर आपके पास कोई पिक्चर JPEG, इन JPG, कैपिटल JPG, PNG इन फॉर्मेट्स में है तो वो एक पिक्चर है. अगर आप so far and so forth आपके पास ये सारी चीजें आपके पास सारी अपने अपने रिस्पेक्टिव एरेज में चली जाएंगी. यहाँ पर फाइल्स नहीं जा रही हैं, यहाँ पर सिर्फ नाम जा रहे हैं. ये चीज भी आपको फाइल्स नहीं सिर्फ नाम देगी. तो अगर हम यहाँ पर नीचे आकर देखें, हमने ऑल लिस्ट को काइंड ऑफ ऑल लिस्ट आपका एक 2D एरे है जिसके अंदर आपके पास सारी चीजें आ जाती हैं. हमने एक लूप लगाया कि भाई पहली लिस्ट उठाओ, मूव फाइल्स को दो. मूव फाइल्स आपका क्या करेगा, मूव फाइल्स आपका जो भी लिस्ट होगी उसको उठाएगा, उसका पहला वाला नाम उसका पहला वाला एलिमेंट लेगा, उसका पाथ लेगा और उसको फोल्डर में मूव कर देगा. ये सारी चीजें आपके लूप के थ्रू खुद ही होती जाएंगी. इफ यू सॉ प्रीवियसली आई हैड ऑलमोस्ट लाइक 166 समथिंग फाइल्स है और यहाँ पर आपके पास नीट एंड क्लीन सारी चीजें पड़ी हुई हैं.
ये आपके पास PDF वगैरह सारी चीज़ें आपके पास नीट एंड क्लीन, यहाँ पर सारा क्लटर फ्री आपके पास एनवायरनमेंट है. This script is not only like my PC based. अगर कोई और बंदा या बंदी ट्राई करे, गिवन कि उसका कंप्यूटर विंडोज रन कर रहा है, नॉट लिनक्स नॉट मैक, अगर आपका कंप्यूटर विंडोज रन कर रहा है, दिस स्क्रिप्ट विल वर्क एब्सोल्युटली लाइक इट डिड फॉर मी, एब्सोल्युटली फाइन. और if you want the DynoBot code, it's on my GitHub, you can download it from there. That's all from my side. Thank you. Wonderful job, Uzair. By Thank the you way, for. are there any questions? Yeah, audience, please, if you have question, use the chat box to send messages. I think nobody has any questions. Thank you, Uzair, for your time. Allah Hafiz. Yes.